नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में एम करुणानिधि को दी गई श्रद्धांजलि, सदस्यों ने रखा मौन। सम्मान में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने करुणानिधि को बताया बहुमुखी व्यक्तित्व से भरपूर शख्सियत। कहा, राजनीतिक जीवन में कई चुनौतियों का किया सामना। देश ने खोया एक स्टेट्समैन और मजबूत राजनेता। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश और विपक्षी दलों के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद आमने सामने। दोनों ने किए जीत के दावे। कल सुबह 11 बजे होगा चुनाव। राज्यसभा में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि तमिल सिनेमा और द्रविड़ विचारधारा आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा। सभापति ने कहा कि करुणानिधि के जाने से देश ने एक स्टेट्समैन और मजबूत राजनेता खो दिया। श्रद्धांजलि देने के बाद करुणानिधि के सम्मान में सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। करुणानिधि का मंगलवार शाम चेन्नई में निधन हो गया था। माननीय सभापति जी। राज्यसभा में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके निधन की जानकारी देते हुए कहा कि करुणानिधि बहुमुखी व्यक्तित्व वाले शख्सियत थे। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Kalingar M. Karunanidhi, President of the DMK party and former Chief Minister of Tamil Nadu, on the 7th of August 2018 at the age of 94 years. He was popularly known as Kalingar. Born in June 1924 at Tirukuvayalai in Nagapattinam district of Tamil Nadu, Dr. Karunanidhi was a multifaceted personality. Right from his childhood, he showed keen interest in drama, poetry and literature and was also actively engaged in social work. सभापति ने कहा कि करुणानिधि जीवन भर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में करुणानिधि ने कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार जीतकर बाहर आए। सभापति ने कहा कि करुणानिधि ने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। In his public life, he turned out to be a gritty fighter and overcame several challenges during his long stint in public life. He began his career as a screenwriter in the Tamil film industry and rose to fame through his popular movie scripts which touched upon various social issues like widow marriage, eradication of untouchability, abolition of jamindari, among others. He used Tamil cinema to propagate his political ideas and Dravidian ideology. Dr. Karunanidhi's passion for the Tamil language and the literature is reflected in his several works including poems, letters, novels, biographies, stage plays and essays. He had also contributed to Tamil culture through art and architecture. He was instrumental in the construction of Valluvar Kottam, which gave an architectural presence to Thiruvalluvar in Chennai, and of the 133-foot high statue of Thiruvalluvar at Kanyakumari. He founded the newspaper Murasoli in 1942 and since then had been the editor and publisher of this newspaper. सभापति एम वेंकैया नायडू ने करुणानिधि के राजनीतिक जीवन सफर का भी जिक्र किया। सभापति ने कहा कि करुणानिधि रिकॉर्ड 13 बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए और 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सभापति ने कहा कि करुणानिधि के जाने से देश ने एक स्टेट्समैन और मजबूत राजनेता खो दिया। Dr. Karunanidhi entered politics at a very early age and was the founder member of the Dravida Munnetra Kazhagam. He started his legislative career as a member of the Tamil Nadu Legislative Assembly in the year 1957 and was a member of that assembly for a record 13 times from 7 different constituencies. His oratorial, administrative skill and pro-people initiatives established him as a mass leader. He served as the Minister for Public Works in the government of Tamil Nadu in 1967 and before becoming the third Chief Minister of Tamil Nadu in 1969. He served as the Chief Minister for 5 terms, from 1969 to 71,
from 71 to 76, from 1989 to 1991, from 1996 to 2001, and from 2006 to 2011. He played a key role in scripting the growth and development of Tamil Nadu, which in turn catalyzed that of the country. In the passing away of Dr. M. Karunanidhi, the country has lost an eminent literator, an able administrator, a dedicated social worker, and an outstanding statesman. इसके बाद सदन में सभी सांसदों ने मौन में खड़े होकर करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। As a mark of respect to the memory of Dr. M. Karunanidhi, former Chief Minister of Tamil Nadu, the House stands adjourned. श्रद्धांजलि देने के बाद करुणानिधि के सम्मान में सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ताधारी एनडीए ने जहां जेडीयू सांसद हरिवंश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। गुरुवार को सुबह 11 बजे राज्यसभा में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत चुनाव संपन्न होगा और इसमें सबसे ज्यादा मत पाने वाले प्रत्याशी को नया उपसभापति घोषित किया जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए बुधवार दोपहर 12 बजे तक 2 ही उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किए गए। एनडीए की तरफ से हरिवंश के पक्ष में 4 सेटों में नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, शिवसेना सांसद संजय राउत, अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा, रिपब्लिकन पार्टी नेता रामदास अठावले और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह भी शामिल थे। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को राज्यसभा के वर्तमान 244 सदस्यों में से 119 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इनमें बीजेपी के 73, एआईएडीएमके के 13, बीजेडी के 9, जेडीयू के 6, टीआरएस के 6, शिवसेना के 3, शिरोमणि अकाली दल के 3, वाईएसआर कांग्रेस के 2, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स फ्रंट और आरपीआई के एक सदस्य शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि बहुमत हासिल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मानता हूं कि वो पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के प्रत्याशी हैं और मोर्चे के बाहर भी बहुत सारे दल हैं जो उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, तो वो भी इस चुनाव में हमें साथ देंगे और इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री हरिवंश जी का जीतना तय है। विपक्ष की तरफ से बीके हरिप्रसाद के लिए नामांकन के 5 सेट दाखिल किए गए। उनके पक्ष में प्रस्ताव करने वालों में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बीएसपी के सतीश मिश्रा और एनसीपी की वंदना चौहान शामिल हैं। विपक्ष को घोषित तौर पर 110 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इनमें कांग्रेस के 50, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के 13-13, टीडीपी के 6, सीपीएम और आरजेडी के 5-5, बीएसपी, एनसीपी और डीएमके के 4-4, सीपीआई के 2, आईएनएलडी, केरल कांग्रेस, जेडीएस और आईयूएमएल के 1-1 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी दावा किया कि संख्या बल उनके साथ है। We have a formidable candidate, not the NDA, making it very clear. NDA as such did not have majority, does not have majority. They have gone well beyond the fold of the NDA to get votes. दोनों ही पक्षों की नजर अब अन्य और निर्दलीय सांसदों पर है, जिनकी संख्या 15 है। इनमें 6 निर्दलीय सांसदों के साथ 4 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। साथ ही पीडीपी के 2 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसद शामिल हैं। उपसभापति पद के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे राज्यसभा में मतदान होगा। राजनीतिक तौर पे अगर देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए राज्यसभा के उपसभापति का यह चुनाव काफ़ी अहम हो गया है। हालांकि सर्वसम्मति बननी चाहिए थी और दोनों पक्षों का यही कहना था, लेकिन अब जब सर्वसम्मति नहीं बनी है तो चुनाव होने के बाद हालांकि जो भी तिक्तताएं हैं वो कम हो जाती हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश से बात की राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। मेरे साथ हैं एनडीए के डेप्यूटी चेयरमैनशिप राज्यसभा के नॉमिनी प्रत्याशी मिस्टर हरिवंश। सर, वेलकम टू राज्यसभा टीवी। आप एनडीए के जॉइंट नॉमिनी हैं, किस तरह से नंबर्स हैं आपके फेवर में? मैं एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा का डिप्टी चेयरमैनशिप का प्रत्याशी हूँ राज्यसभा में। यह एनडीए ने तय किया। मैं एनडीए के सारे
वरिष्ठ नेताओं को जो मुझे इस पद के योग्य जिन्होंने समझा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और 100% हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सर, कल खबरें ये भी आ रही थी कि जेडीयू ने बीजेडी से संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि उनका सपोर्ट भी मिल सके। हम लोग एक टीम हैं, एनडीए एक टीम है और टीम की तरह काम करता है, तो संभव हम सबसे बात करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप हमारा समर्थन करें। सर, आज विपक्ष का ये कहना था कि कंसेंसस कैंडिडेट के लिए बात नहीं की गई, नहीं तो वो फिर इस बारे में विचार करते। इसका उत्तर हमारे माननीय संसदीय राज्य मंत्री विजय गोयल जी ने दिया है कि वो लगातार विपक्ष के संपर्क में थे। चूंकि विपक्ष किसी भी कीमत पर कोई प्रत्याशी उतारना चाहता था, इसलिए उन्होंने किया। हालांकि मैं एक तथ्य और बता दूं कि जब से राज्यसभा बनी है तब से लेकर आज तक 1952 से अब तक लगभग 19 लोग इस चेयर पर बैठे हैं या 19 टर्म ये चेयर चला है, उसमें 16 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ही रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत के लिए? 100%। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ कृति मिश्रा। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद के साथ बात की राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। मेरे साथ है विपक्ष के जॉइंट कैंडिडेट राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैनशिप के लिए मिस्टर बीके हरिप्रसाद। सर, आप जॉइंट कैंडिडेट तो हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं वो ऑपोजिशन के या पर्टिकुलरली आपके फेवर में हैं? देखिए, जॉइंट अपोजिशन के कैंडिडेट इसलिए बनाया गया है, हमारे पास नंबर है, इसलिए नंबर बना के ही हमको कैंडिडेट बनाया है। हम इस चुनाव जीतेंगे। एनडीए का भी कहना है कि उसके पास नंबर्स हैं और लगातार सरकार ये भी कहती है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट होना चाहिए। एनडीए का तो आदत है, बगैर नंबर भी वो लोग सरकार बना लिया है बहुत राज्यों में। ऐसा इधर करने का कोशिश करेगा। कल पता चल जाएगा, ये ओपन वोटिंग है, पता चल जाएगा कौन कहाँ है। कौन कौन सी पार्टीज आपके साथ हैं और राजनीतिक दलों से आपने बात की है? जॉइंट अपोजिशन का है, जॉइंट अपोजिशन का कैंडिडेट होगा। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।